انشاءاللہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے پھر سے دوستوں، آج جب اتفاق ہے کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ گئی تھی، ہم نے دوبارہ سارا معاملہ پھر سے شروع کیا ہے کہ جو دوست جوائن کیا ہوا ہے وہ لوگ پھر سے آ جائیں جیسا. اور رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم. ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤ دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے. ٹورانٹو کی ایک روشن اور گرم صبح ہے، 28 ڈگری کی تمازت، جو کہ یہاں ہمارے لیے بہت زیادہ گرمی ہے. لوگ پانی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، یعنی بیچ پر سرگرم عمل ہیں. مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے. آج آپ کی ملاقات ایک ملٹی فیسٹڈ ہمہ جہت قلمکار بلکہ فنکار سے ہوا چاہتی ہے. 50 سے زائد کتابوں کے مصنف، ساہتیہ اکیڈمی کے انعام یافتہ، سیزن ٹرانسلیٹر، ریسرچر، فلم رائٹر، ادیب و شاعر، محترم ڈاکٹر محمد زما آزردہ، حسن آباد سری نگر کے ہر دل عزیز، استاد، مشفق، دوست، صوفی منش انسان اور مقناطیسی شخصیت اور مسکراہٹ کے مالک. میرے خیال میں آپ واحد پروفیسر ہیں جو اردو، کشمیری، ہندی اور شاید سنسکرت کے بھی ہیڈ رہ چکے ہیں، ساتھ ہی ڈین فیکلٹی آف آرٹس اور ڈین فیکلٹی اورینٹل لرننگز کے بھی ڈین رہ چکے ہیں. آئیے قبلہ کا استقبال احمد فراز کے خوبصورت شعر سے کیا جائے کہ اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں پہ سارا کلام رکھ دیا. ویلکم ٹو آوارگی ود دانش، سیزن 5، 227 ایپیسوڈ. محترم ڈاکٹر زما آزردہ صاحب، آداب، مزاج گرامی. آپ کو آداب۔ پریشان کر دیا ٹیکنیکل پرابلم کی. معذرت معذرت. تو ہم کیونکہ وقت اچھا خاصا اس میں نکل گیا ہے، کافی لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے. آپ کے چاہنے والے بہت سارے آ چکے ہیں اور جمع ہیں. ہمارے سائے دیوار پہ کافی لوگ کمنٹس کر چکے ہیں، میں رفتہ رفتہ بتاؤں گا. تو حضور والا قدرت نے آپ کو دلاویز مسکراہٹوں والی زندہ دلی عطا کی ہے، پھر آزردہ کیوں، کس کی خاطر، یہ بتائیے. یہ اس میں آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ جاوید دانی صاحب، آپ نے تو مجھے اتنا، آپ نے اس طرح سے انٹروڈیوس کیا، جتنے آپ نے میرے بارے میں، یہ کیا کہوں میں، کیا جملے اور کیا لفظ بھی. آپ تو زبان والے ہیں، پہلے زبان ہیں. ہم تو کشمیری ہیں، پہاڑ والے. ہم یہ ایسی شستہ زبان کیا بولیں اور کیا کہیں. بلکہ آپ نے مجھے اس وقت تھوڑا سا باوجود اس کے کہ میں خوش ہوں کہ آپ نے اس طرح سے مجھے پکارا، لیکن اس کے باوجود اس سے بھی آزردہ ہو جاتا ہے آدمی جب کوئی آدمی اپنی نشست سے ہٹا ہوا اپنے آپ کو پائے. تو ظاہر ہے کہ آزردگی تو ہوگی، لیکن یہ اصل میں ہمارا پبلسٹی سیکشن ہے کہ نظر نہ لگے. ورنہ ایسی کوئی بات ہے، البتہ لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. غنی کے اس مصرے کے ساتھ وہ جو افسردہ دل افسردہ کنن جو منیرا، میں کہتا ہوں میں افسردہ نہیں ہوں. میں آزردہ ہوں. آزردہ مینز اینگری ینگ مین، ناٹ ڈیجیکٹڈ. تو بہرحال اب یہ ظاہر ہے کہ ساتھ لگ گیا ہے. اور میں بتاؤں گا اگر بات ہوئی، اچھا اتفاق ہے کہ ایک مشاعرے میں گیا تھا. میرے دوست ہے کہ منظور اور وہ ایک ایرج. میں نے کہا تخلص، میں نے کہا میں مرزا لکھتا تھا، کبھی زبان لکھتا تھا. تو پھر وہ غزل جو پڑھنا تھی، اس کا مجھے مطلع کا ایک مصرع یاد ہے: کب سے کھڑا میں نرگس سے بیمار بنا ہوں. اور اسی میں ایک شعر پھنستا تھا: لوگوں نے تجھ کو جب سنا آزردہ کر دیا، میں آسودگی سے دیکھیے بیزار بنا. کہا یہ آزردہ، بس بس یہ ہو گیا، مل گیا مل گیا. تو بس یہ چپک گیا اس سے، آپ یا کے میں ساتھ اس سے چپک گیا. ہم، بہرحال یہ اتفاقات ہوتے ہیں، اتفاقات ہوتے ہیں. بہت سارے دوست، کیونکہ یہ دوبارہ شروع کیا ہے، پہلے والے میں بھی کافی دوست آگے تھے. میں ان تمام دوستوں سے معذرت کہ انہیں پریشانی ہو رہی ہے، مگر دوبارہ ہم شروع کر چکے ہیں. تو آئیے اس بار پھر جمع کیجیے. علی گڑھ سے ڈاکٹر عبد المعید شمس صاحب آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، اور ظفر جی عالم بھائی فرید آباد سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. سیدہ خان صاحبہ ڈاکٹر ایس خان فرام میرٹھ سلام کہہ رہی ہیں، اور بہت دور سے
हमारे दोस्त मॉरिशस से आपको डॉक्टर आसिफ याद कर रहे हैं, सलाम अरे कह रहे हैं। जी साहब। और मेरा भी तो सबको सलाम कह दीजिए। जैसे जैसे दोस्त आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, और बात भी साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी हमने कुछ वक्त बर्बाद भी कर दिया। तो आप इत्तेफाक है दोस्तों, मैंने तस्वीरें तो लगाई थी फेस उस पे स्ट्रीम लाइन पे, उसमें से आप देख सके तो देखें। यहाँ तस्वीरें ज्वाइन नहीं कर सका क्योंकि कंप्यूटर पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई, तो ये मैं दूसरे कंप्यूटर से कर रहा हूँ। और एक तस्वीर थी जिसमें माशाल्लाह आपकी पुरानी जो नौजवानी की तस्वीरें हैं, उसमें एक बड़ी कतील, मैं कहता हूँ कतील तस्वीर थी। तो उसको देखकर मुझे ख्याल आया कि क्या फिल्म वाले ने एक्टिंग की ऑफर आपको नहीं किया, आपके हालांकि फिल्म राइटर भी हैं। नहीं, वो कुछ भी हो, आप कुछ भी कहिए, आप एक्टिंग न कीजिए, फिर भी आप हर वक्त एक्टिंग ही करते रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आदमी जिंदगी में एक्टर ही तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अच्छा, किश्वर शमशाद सलाम, श्रीनगर से आपके लिए सलाम आया है। असदुल्ला मीरुल हसनी सलाम कह रहे हैं, ढेर सारी मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। सरहद पार से ये सलाम आया है। और आसिफ भाई मॉरिशस से कह रहे हैं कि अजूदा साहब से मुलाकातों की याद ताज़ा हो गई। कौन है जो अजूदा साहब से मिल के मुलाकातों को याद ताज़ा नहीं कर सकता। जी ये साहब। कमाल ये तो है कि आज़ादा से मिलके कोई खुश हो। हाँ, मोहम्मद मोहम्मद फैजान माशाल्लाह कश्मीर में ही हैं इस वक्त, और जी प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और जी। जनाब रिजवानुल हसन साहब सलाम कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने लिखा नहीं कि कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों ये ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कि बात के दौरान मैं बताता रहूं। तो एक फिल्म की बात हो रही है, तो बॉलीवुड से परे रीजनल ज़बानों में बंगला और मलयालम तमिल वगैरह में बड़ी फिल्में बनती हैं। तो क्या कश्मीरी जबान में भी फिल्म प्रोड्यूस होती हैं? मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, ये बताइए। नहीं, कश्मीरी में अब शुरू हुआ, पहले तो कोशिशें हुई थी। जैसे हाँ। एक बार महजूर पे फिल्म की थी, और बल्ला साहनी ने उस पे बने बड़ी मेहनत की। और उसके बाद ये जो इसमें बनी फिल्में, टेलीविजन के लिए जो फिल्में बनी, फीचर फिल्में, बशीर बडगामी ने, हम्म, एक तो हवा खातून और रसुल मीर पे उन्होंने फिल्में बनाई। अब एक आयाश आरिफ हमारे दोस्त हैं, वो कुछ बना रहे हैं कश्मीर के हवाले से, अब शुरू हो गया है इन्हें फिल्में बनाना। असल में उसके लिए ये भी है ना कि वो मार्केट कैसी है, मार्केटिंग कितना कैसी है? उसको जी होता हाँ। है। जी हाँ। तो हालांकि वो फिल्म डिवीजन कुछ पैसे देता है, खरीदता है कुछ प्रिंट्स, तो उसमें शायद गुजारा नहीं हो पाता। नहीं होता। तो जी हाँ। इसलिए उसके लिए जब तक कि मार्केट ना हो, लेकिन मार्केट। अब धीरे धीरे ठीक कर मार्केट रहा होगी। है। जी हाँ। जी हाँ। और अजीब बात यह है कि हर फिल्म में कश्मीर है, लेकिन कश्मीरी में कश्मीर। फिल्म। क्या बात कह दी आपने, वाह वाह। सारी फिल्मों की, बल्कि सिर्फ कश्मीर रहा करती थी एक जमाने में। लोग जब बाहर नहीं जाते थे अब फिर तो शुरू हो गया, अब फिर हर, शुरू हो गया। हाँ, हर जगह हर सीन जो है, देखिए, रोमांटिक सीन, वो कश्मीर हाँ, से ही शुरू होता था। यहाँ हर हमारे जगह नेचुरल सेट मौजूद है। हम्म फारूक जी। बख्शी भाई दिल्ली से सलाम कह रहे हैं दोनों मेहरबानों को आदाब, दिल्ली से फारूक बख्शी। आदाब आदाब अंजुम फारूक। आमिर खान हमारी बाजी देख रही हैं, कह रही हैं कि मैं तो श्रीनगर से ही देख रही हूँ प्रोग्राम। अच्छा और अच्छा अच्छा। लंदन इंग्लैंड से हमारे बड़े अच्छे दोस्त साद हाशिम आपको सलाम कह रहे हैं। और शफीक बेग हमारे थिएटर के दोस्त हैं, शायर भी हैं, और ये आपको सलाम कह रहे हैं टोरंटो से। अच्छा अच्छा। तो आपने कश्मीरी जबान शायद डोगरी में बेश बहा काम किया, बहुत काम किया, मगर अभी भी कश्मीरी अदब जो है, इससे हम उर्दू वाले जो हैं कम कम वाकिफ हैं। ऐसा सितम क्यों? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हुए हैं। अगर आप सिर्फ फिक्शन को ले लीजिए, 6th सेंचुरी में गुनाडे ने ब्रहद कथा लिखी। यहाँ की लैंग्वेज में उसकी एक वजह थी, क्या हो गया था बादशाह से, उसने कहा कि आप संस्कृत नहीं सीख सकते 6 महीने में, जबकि उसने सीख ली और उसने कहा था फिर मैं संस्कृत में नहीं लिखूंगा, मैं लोकल लैंग्वेज में लिखूंगा। अब आप कलीला दमना को जानते हैं, उसी से माखूज है। कथा सरद सागर उसी से माखूज है। हम्म पंचतंत्र की कहानियां उसी से हैं। हमारे यहाँ शुरुआत तो बहुत पहले हुई है, लेकिन बीच में कुछ गैप्स ऐसे हैं। अब इससे आगे आइए, मैं कहता हूँ कि अदब के लिहाज से, तनकीद के लिहाज से, जिस वक्त आनंद वर्धन ने 8वीं सदी में, 9वीं सदी में एस्थेटिक्स इन लिटरेचर की तरफ इशारा किया और उसको थियोराइज करने की कोशिश की, उसके बहुत बाद यूरोप को ख्याल आया कि दैट कुड बी ए सब्जेक्ट।
इसी तरह से कितनी चीजें, फिर आप ललदत के पास आइए, शेख उल आलम के पास आइए। मुझे एक बात बताते हुए कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है, आजकल माहौलियाती तनकीद और माहौलियाती अदब पे बहुत काम हो रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं। और हमारे शेख उल आलम ने 14वीं सदी में कहा, अनपोषितिल्ली वन पोष, यानी खाना उसी वक्त तक चल सकता है, मिल सकता है जब तक कि जंगल मौजूद हो। वाह। अब ये 14वीं सदी में उसने ये, मुझे एक, मैंने सिर्फ एक वो लाइन कही, अनपोषित लील वन पोष। इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ के लोग बराबर कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, लेकिन बीच में गैप्स बहुत हैं। बहुत। पता नहीं उसकी वजह सियासत है, सियासत है उसकी जी। वजह समाज है, उसकी क्या वजह हो सकती है, लेकिन गैप्स लंबे लंबे हैं। लेकिन इधर अब यानी 1950 से आगे एक कंटिन्यूटी एक तरह की है। मगर साहब, कश्मीरी में तसव्वुफ का जो मामला है, कश्मीर के सूफी, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसके बारे में नहीं, बताएं। देखिए, देखिए ऐसा है कि जब लोग सिक्लूजन में रहे, तन्हाई में रहे, यहाँ 6 महीने बिल्कुल बर्फ रहती थी, सर्दी रहती थी, लोग कमरों में अंदर बैठे रहते थे, और फिर हालात ऐसे थे कि बाहर से हमले होते थे, जो आपको एक जमाने में दिल्ली और लखनऊ में फर्क नजर आएगा। दिल्ली में आप देखेंगे कि तसव्वुफ और ये बहुत था उस जमाने में, जबकि लखनऊ में चूंकि फरावानी थी हर चीज की, और वो ने दूसरी तरफ को निकल गए, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हम्म। इसलिए कश्मीर में तसव्वुफ की तरफ बहुत ज्यादा माइल रहे लोग। और हकीकत में हमारी शायरी जो है उसमें तसव्वुफ का पलड़ा अब भी बारी है। भारी। यानी अब भी लोग नहीं, इस तरह के ऐसे हैं जो सूफियाना कलाम से ज्यादा, यानी कहना चाहिए कि यानी रगबत रखते हैं। बल्कि हमारे गाने वाले जो हैं उन्होंने भी सूफियाना कलाम को इतना गाया है, इतना हम्म। गाया है हम्म। कि अरे, एक तो मकबूलियत, और फिर जबान पर आना, इस तरह से लोगों की जबान पे आना, वो सूफियाना कलाम ज्यादा आता है बनिस्बत दूसरी तरह का कलाम जो दूसरे। है। तो हमारे यहाँ इसकी रिवायत जो है ये इब्तदा ही से अब तक चली आ रही है। और अब भी शायरी में आपको मुतसव्विफाना मिलती। असरात या तसव्वुफ के असरात कहिए, वो आपको जरूर नजर आएंगे। एहसान ताबिश भाई बिहार गया से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अरे, मोहम्मद उसामा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उड़ीसा से देख रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। और मोहम्मद काजिम भाई दिल्ली से देख रहे हैं, कह रहे हैं दोनों अहम शख्सियत को मुबारकबाद। अच्छी और मालूमाती गुफ्तगू हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इसी तरह बताते रहें आप कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और रसाई अदब पर भी आपकी गिरफ्त गहरी है। बेशतर लोग अनीस पर इक्तफा कर लेते हैं, मगर आपको मिर्ज़ा दबीर का ख्याल कैसे आया? देखिए ऐसा है, अव्वल तो ये कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ वाला, अरे मोस्टली पहाड़ों पे क्या होता था कि दुकान 9-10 मील दूर होती थी। हम्म। बावजूद इसके कि झरने थे, सब कुछ था, पानी कहाँ से बरखला। इसलिए कश्मीरियों के मिजाज में दुश्वार पसंदी है, सख्ती पसंदी है। तो जब मैंने महसूस किया उस वक्त, सब कहते थे कि दबीर बड़ा मुश्किल शायर है, बड़ा मुश्किल शायर है। मैंने सोचा यही तो मुझे सूट करे। हम्म। और फिर मैंने उस वक्त ये काम शुरू किया। ये मैंने काजी अब्दुल वदूद से कहा है, अल्लाह मगफिरत करे उनकी। सब लोग डराते थे तबीर से, मुझे याद है, अल्लाह मगफिरत करे इन लोगों की। अस्करी साहब बाहर बैठते थे, खुदा बख्शा लाइब्रेरी में, और अंदर रीडिंग रूम में काजी अब्दुल वदूद साहब कुछ वक्त सर्व करते थे। जब उनको मालूम हुआ कि ये कश्मीरी लड़का ये दबीर पे काम कर रहा है, उसने कहा क्या मिलेगा आपको दबीर से। फिर उसके बाद मैंने उनसे बहस की, कोई 1 घंटा बहस हुई। उसके बाद वो इस कायल हुए, कोई मुझे ले गए। फिर मैंने मौलाना आज़ाद के बारे में एक जुमला कहा था अपने इसमें, मेरे एक ऐसे में खतूत खतूत में वो आया था। जब उन्होंने वो सुना तो मुझे घर ले गए, नाश्ता कराई, बड़ी बात थी काजी बोलूं। और वहां मुझे एक मजबूत दिया जो उन्होंने छापा था, तो मेयार, मेयार में शायद क्या नाम था उसका, मेयार ही नाम था शायद। तो उसमें छपा था मार्गे दबीर के नाम से। तो मैंने देखा कि दबीर का कैनवस बहुत फैला हुआ है। नहीं, हम्म। मेरा एक जुमला है, शबीर हसन साहब ने इसकी बहुत तारीफ की थी, बल्कि जमील साहब ने भी बाद में इसकी दाद दी थी, अल्लाह जमील जरी ने, अल्लाह मगफिरत करे उनकी। मैंने कहा था कि आप दबीर के यहाँ अनीस को पा सकते हैं, लेकिन अनीस के यहाँ दबीर को नहीं पा सकते।
वाह। उनकी मसनवियाँ उनके यहाँ नहीं मिलेगी, दबीर के नसर उनके यहाँ नहीं मिलेगी। फिर हम्म, कितनी चीजें हैं, मैं क्या दोहराऊं, कि जो चीजें उनके यहाँ मिलेंगी। अलबत्ता एक ने, मैं कहता हूं कि वो साहू हुआ था, क्या बात हुई थी कि शिबली ने, अल्लामा शिबली ने जो अनीस दबीर के हवाले से, वो अनीस दबीर के नाम से किताब लिखी, उसमें उन्होंने मवाजना शुरू किया अनीस दबीर। खुद हम्म, कहा कि मेरी समझ में कि ये फैसला कोई नहीं कर सका कि कौन बड़ा है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ शेर दबीर से मंसूब किए जो उनके नहीं थे। और फिर एक खास बात जो है, ये तो वही समझ सकता है जो एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हो, जो हिस्ट्री का स्टूडेंट हो। हालांकि वो भी तारीख से उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। हम्म, जब अनीस फैजाबाद से लखनऊ आए अपनी बयाज लेके, उस वक्त तक दबीर का तूती बोल रहा था। बिल्कुल। और उन्होंने उन्होंने क्या कहा, देखिए, अनीस ने ये कहा था और दबीर ने इसके जवाब में ये कहा, कितना फुसफुसा है। जबकि नक्शसानी हमेशा बेहतर होता है। वो ये सोच भी नहीं सके कि पहले दबीर ने कहा होगा, फिर शायद अनीस ने इस पे हाँ। इसको इसको तरक्की दी हो। ये वो तस्वर नहीं कर सके। और दूसरी एक बात खास, ये मैं आपसे अर्ज करूंगा, बल्कि ये मालूम हो जाना चाहिए सबको। एक फैसला उन्होंने सादर कर दिया कि अनीस के यहाँ फसाहत है और दबीर के यहाँ बलागत है। हकीकत यह है कि फसाहत जो है बलागत का पहला जीना है। वाह। बलागत बगैर फसाहत के मुमकिन ही बस। नहीं है। तो हाँ। इस तरह से, इस तरह के फैसले जो उन्होंने सादर कर दिए, तो उससे क्या हुआ, फिर हम टीचर्स का एक कंट्रीब्यूशन है, डू अपोलॉजीज टू ऑल द टीचर्स हु मस्ट बी ज्वाइनिंग द प्रोग्राम राइट नाउ, कि हम टीचर्स बहुत सैल पसंद भी हैं। हम मर्से पढ़ाने जब जाते थे क्लास में, ये मवाज ने इनिशियो दबीर उठा के इसको देखा और जा करके लेक्चर दिया। अच्छा, हमने जो दूसरे जराए थे दबीर के बारे में, अफजल हुसैन साबित ने उस जमाने में काम किया, फोक में महाबनी ने काम किया, दूसरों ने वो, बल्कि खुद शिबली के मुवाजने के खिलाफ यानी कितनी किताबें लिखी गई। अलबत्ता एक बात है, वो किताबें इनफरादी सूरत की थी, अफराद ने लिखी थी। मुआज रबीर के पीछे एक यानी अंजुमन थी, एक इदारा था। ये हर 6 महीने में छपता रहा मुआज रबीर, और वो किताबें एक बार छप गई फिर गायब हो गई। बहरहाल इस तरह से ये कुछ शिकायतें थी और कुछ गलतफहमियां थी। मैंने उस वक्त कोशिश की कि मैं ये दूर करने की कोशिश करूं, और अल्लाह का शुक्र है कि इस काम को उस जमाने में सराहा गया और अब तक ये बराबर वो जारी है और लोग इसका जिक्र करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें खुद दबीर का ही, यानी ये उनकी मदद थी। एक मैंने मजमून अभी किसी दबीर नंबर के लिए लिखा था कि दश्त दबीर की ज्यादा पैमाई है। अच्छा। यानी मैं कहाँ कहाँ पहुंचा, अगर मैंने दबीर पे काम न किया होता, मैं मुर्शिदाबाद न गया होता, मैं पटना में न रहा होता, मैं लखनऊ में न रहा होता, और उन लोगों से कहाँ मसूद सर रिजवी अदीब, कहाँ यानी सैयद मोहम्मद रशीद, कहाँ चौधरी सिफ्त मोहम्मद नकवी, और कहाँ ये लोग, मैं कितने नाम गिनवाऊं, कि या शबील हसन साहब, इब्न हसन नुनैलवी साहब, वाह। इन लोगों से जो मेरी मुलाकातें हुई, ये दबीर की बरकत से। अगर मैंने इन पे काम न किया होता, तो जो मैं आपको नजर आता हूं, मैं उसका चौथा ही होता, वाह। पूरा ना। क्या बात है, वाह वाह वाह। रांची से फिरदौस जहां साहिबा आपको सलाम कह रही हैं। और सैयदा खान साहिबा करीम मिर्ज़ा दबीर जैसे मुश्किल शायर पर काला काम करके सर ने अपनी मेहनत का सबूत दिया। जी बिल्कुल। डॉक्टर मुस्तफ़ा ग़ुलाम ज़िया साहिब फरमा रहे हैं, माशाल्लाह प्रोफेसर जमा अजुद्दा साहब उर्दू रवायात का मुंह बोलता सबूत हैं। और हज़रत आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये भी बताइए। और तो दबीर उर्दू के तालिब इल्मों, बल्कि अदब के सीकर्स जिसको कहना चाहिए, के लिए दबीर और अनीस क्यों ज़रूरी? देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, ये असल में इन दबीर जरूरी है मरसिए की वजह से। और मरसिए जो है, ये हमारे कल्चर की नुमाइंदगी करता है। बिल्कुल। में हमारी शायरी भी आती है, हमारी तहजीब भी आती है, हमारा अदब भी आता है, सब कुछ आता है एक जगह पे। और दूसरे एक बात ये कि इसने कुछ ऐसा समा बांधा, लोग समझते हैं कि मरसिया जो है ये अरब का मामला था, इस्लाम का मामला था, लेकिन जब हमारे शायरों ने इस सिंफ को छुआ, ये हिंदुस्तान का हो गया। बिल्कुल। आप जब मरसिया पढ़ते हैं, चाहे अनीस का पढ़ें चाहे दबीर का पढ़ें, मैं कहता हूं कि रस्में जो हमारे यहाँ की हैं,
ہمارے یہاں کی، یعنی ہمارے یہاں کی تہذیب جو ہے، خصوصاً اودھ کی، اب دیکھیے جب اودھ کے مرثیے کو دیکھیں گے، اب آپ تصور کیجئے کہ وہ جب حضرت قاسم کا انتقال ہوتا ہے، تو جب فاطمہ کہتی ہے حضرت سکینہ سے، اس کی زبان سے کہلوایا گیا ہے، بی بی نہ پکڑو ہاتھ کے میں رانڈ ہو گئی۔ اچھا، اس کا عرب کلچر سے کیا تعلق ہے؟ اس کا انگریزی کلچر سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہمارا کلچر ہے نا۔ یا سالگرہ، اچھا، اور وہ گانٹھیں، اور یا یہ کہ میں جو شادی کی جتنی رسمیں ہیں، باوجود اس کے کہ اس میں گنجائش کم ہے، لیکن انہوں نے کیسے کیسے ان چیزوں کو باندھا۔ اور پھر ہمارا ماحول جو تھا، ہر طرح سے ہماری فضا جو تھی، اس کو ایسا باندھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرثیہ جو ہے، اس میں پورا ہندوستان ہے، اور ہندوستان کو اگر ادب کے ذریعے، شعر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مرثیہ تک جانا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت ضروری ہے جی صاحب، بہت ضروری۔ شکیل افروز بھائی ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ فاروق بخشی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ثابت لکھنوی کا کام می دبیر کے حوالے سے ابتدائی نوعیت کا تھا، مگر دبیر پر پروفیسر آزردہ کا کام بے شک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، ماشاءاللہ جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بخشی بھائی۔ اور جناب ایک سیکنڈ جی، اردو کے اساتذہ پروفیسرشپ اور ہیڈ کے لیے، یعنی اردو کے لیے جان نثار کیے دیتے ہیں۔ آپ اردو، کشمیری، ہندی یہ سب کے ہیڈ رہ چکے ہیں، ساتھ ہی ڈین فیکلٹی رہ چکے ہیں، یہ سب کیسے آپ نے مینیج کیا؟ یہ ایک بات ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ تو سب خدائی بخشندہ نے وہ سعادت ہمیں دے بخش۔ دیا، اور یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آدمی جہاں جائے وہاں کام کرے، کچھ نہ پوچھ چھوڑے۔ آپ اگر ہماری یونیورسٹی میں آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اتنی بلڈنگس ہیں، اردو ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ الگ ہے۔ ارے یہ کیسے؟ یہ آزردہ نے بنوایا تھا۔ واہ، اچھا، ہر جگہ گڈ آفسز کمیٹی کا وہ ڈیسیژن ہے، یہ 10% ڈسکاؤنٹ، ہماری لائبریری میں جائیں گے تو وہاں 17%۔ ارے یہ کیسے؟ یہ آزردہ نے کرایا تھا، میں نہیں بس لائبریری۔ اچھا، یہ لائبریری ہماری ایک زمانے میں بہت وہ، یعنی کنیکٹیوٹی کے اعتبار سے ابتدائی دنوں میں، آج تو خیر سبھی انٹرنیٹ سے کھیلتے ہیں، ہم، ابتدائی دنوں میں اس کے کہ کنٹری میں جتنی بھی یونیورسٹی لائبریریز تھی، یہ بہت، یعنی اس میں پرومیننٹ مانی جاتی تھی کنیکٹیوٹی کے اعتبار سے، لیکن ہم نے انیشیٹو لیا تھا۔ اصل میں ہم رسک لینا جانتے تھے، ہم، اور اصل میں رسک لینے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں اگر ہوتا، میں رسک لینے کا قائل نہ ہوتا تو میں کیا دبیر کو ہاتھ لگاتا؟ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی افسانہ نگار کو لے لیتا اور چھوٹا موٹا وہ کچھ تھیسس لکھ کے، ڈگری تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، کسی ایسا کو، نہیں ہے۔ اور میں بالکل، ڈگری کی وجہ سے یہ کتاب جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، ہم، یہ کتاب اپنی وجہ سے زندہ ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس کے لیے نہیں۔ بالکل بالکل صحیح۔ ہاں، این تابش بھائی گیا سے دیکھ رہے ہیں صاحب، کہہ رہے ہیں محترم پروفیسر زما عزدہ صاحب اور آپ کو سلام، اور اس خوبصورت اور علم افزا گفتگو کے لیے دلی مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ این تابش بھائی۔ تو قبلہ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں آپ، بڑے 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 چھوٹے سیمیناروں میں سرگرم عمل رہتے ہیں، اور اتنی انرجی کیسے؟ زعفرانی چائے کے علاوہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ بتائیے۔ دیکھیے، جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، ہماری سب سے مرغوب غذا تو غم رہی ہے۔ ہم واہ، غم ہی کھاتے رہے، ہم تو غم اچھا، ہی کھاتے رہے، اور غم میں اتنی قوت آتی ہے، اتنی ہاں، قوت ہوتی ہے کہ برداشت بھی خود بخود آ جاتی ہے، جگراتے کی قوت بھی آتی ہے، ہاں، پہرو کنٹینیوسلی کام کرنے کی بھی قوت آتی ہے، لیکن کس سے؟ جب آدمی نے غم کو برداشت کرنا سیکھ لیا ہو۔ حقیقت میں ایسا ہے کہ، یعنی بچپن ہی میں مجھے کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ بھائی میں کام کرتا رہوں، اور ایک کام کے ایک بات کی طرف آپ نے وہ، یعنی توجہ شاید نہیں فرمائی، کہ میرا بیسک فیلڈ جو ہے، میں ایسیسٹ، انشائیہ نگار، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ کشمیری ہسٹری، یعنی کشمیری ادب کی تاریخ جو ہے، اس میں جب آپ ایسے کا باب لکھیں گے، میں نے کشمیری میں اس کا نام اس سے رکھا ہے، اور
ایسے میں نے وہ میں نے اس میں کوشش بھی کی، ایک کتاب ہی کا نام میں نے ایسے رکھ دیا تاکہ وہ میں نے یہ رجسٹرڈ ہو اس کا نام۔ جب ہم ناول لے سکتے ہیں تو ایسے کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ کوئی خبم پارا کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ تو کشمیری ادب کی تاریخ جب لکھی جائے گی یا لکھی جا رہی ہے، ایسے کباب آپ کو میرے نام سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ واہ، لوگوں نے اس پر ویری توجہ نہیں کی۔ امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، اردو میں میرے زیادہ کلیکشنز ہیں، شاید 7 8 کلیکشنز ہوں گے ایسے اس کے۔ بلکہ ایک ہمارے وہ جس کو میں کہتا تھا کہ ہر گاؤں کے مناظر کا عاشق، اللہ مغفرت کرے، مناظر عاشق ہرگانوی، اس وقت جب ان کا انتقال ہوا وہ لکھ رہے تھے کہ اردو میں یعنی بچوں کا پہلا انشائیہ نگار۔ تو اس عنوان سے وہ کچھ لکھ رہے تھے، مجھے بتایا کہ میں لکھ رہا ہوں اس پہ۔ تو بچوں کے لیے جو ہم نے انشائیے لکھے، جو گلدستہ کے نام سے چھپے ہیں گلدستہ، چاپ جی والے۔ ہاں۔ ہاں جی، ایک زمانے میں بہت پذیرائی ہوئی ان چیزوں کی۔ اچھا، کشمیری میں ایک خاص بات میں بتاؤں گا کہ جس کتاب پہ مجھے ایوارڈ ملا ساہتیہ اکیڈمی کا، انشائیہ اس میں میں اسے کہوں گا، آپ انشائیہ کہیے۔ اب تک وہ شاید 15 16 زبانوں میں آ چکی ہے کتاب، اور ابھی بھی وہ تیلگو اس کا چھپ رہا ہے، یہ منی پوری چھپ رہا ہے، ڈوگری چھپ رہا ہے، اور کوئی اور کونکنی۔ اچھا، ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ راجستھانی ٹرانسلیٹر نے جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا، کمل رنگا نے کہا سر یہ لگتا ہی نہیں 40 سال پہلے کی کتاب، یہ آج کی کتاب ہے۔ کنٹمپرری۔ آسامیز ٹرانسلیٹر بھی یہی کہتا ہے۔ اچھا، پنجابی ٹرانسلیٹر بھی یہی کہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں کچھ اس طرح کی گفتگو کروں جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ایسے اس میں تھا، ہم نے لکھا تھا لیڈر، سیڑھی۔ پھر جو ہم نے اس کی تشریح کی ہے کہ ہر ایک کو زینا چاہیے، سیڑھی چاہیے اوپر چڑھنے کے لیے، یہ اتفاق ہے جب وہ اوپر پہنچتا ہے اس کی 2 خواہشیں رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی یہ نہ دیکھے کہ یہ کس سیڑھی سے اوپر ہے، اچھا، دوسرا یہ کہ کوئی اس سیڑھی سے اور اوپر نہ آئے، اس لیے واہ، وہ اس کو ہاتھ مار کے دور پھینک دیتا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ آج بھی یہ ہوتا آج ہے۔ بھی ہے، بالکل کنٹمپرری۔ اچھا، اسی طرح سے کتنی چیزیں ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے خود بھی۔ ابھی کسی سے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، ٹریفک جام میں میں ایک بار پھنس گیا تو میں نے ٹریفک جام پہ کچھ لکھا، اور ایک اس میں نے بس ایسے ہی کہ بھئی آخر سڑکیں اس سے زیادہ چوڑی کیا ہو سکتی ہیں، اور لوگوں کو تو گھر سے نکلنا ہے۔ یہ اصل میں ٹریفک جام ہوتا ہے، یہ قصور گاڑی کا ہے کہ اتنی ہیوی ہے۔ یہ اتنی ہلکی ہونا چاہیے کہ آدمی سٹیئرنگ سے اترا، اس کو ہاتھ میں اٹھایا اور بھیڑ کو چیر کے نکل گیا۔ چل، اچھا، اب آپ میرا ایسے پڑھ کے انہوں نے نہیں کیا، وہ خود ہی لوگ اس طرح سے سوچتے رہتے ہیں۔ جاپان نے ابھی جو گاڑی بنائی 4 5 سال پہلے، آفس سے باہر وہ اس کو فولڈ کر کے سوٹ کیس میں رکھ کے اندر لے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت میں نے کسی اور طرح سے، بلکہ آج بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی انشائیے میں کبھی لکھا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا نام تو ہوں گے، انہیں لوگوں کے نمبر ہوں گے۔ واہ، اب وہ زمانہ کیا ہے؟ اب ہم سب نمبری ہو گئے، پہلے نامی ہوا کرتے تھے، تب سب نمبری ہو گئے۔ اب کیا بالکل۔ کیجیے؟ اور یہ خاص چیز جو ہے، یہ انشائیہ یا اسے کہیے، اس کی طرف اس میں ایک خاص بات تھی، وہ یہ کہ اس میں آپ کو یعنی دیکھیے، جو مضمون لکھتا ہے، مقالہ لکھتا ہے، مقالہ مقالے والا تو، اور حوالوں کا جلوس اس کے ساتھ ہوتا ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ تو بہرحال ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنا مائنڈ جو ہے دوسروں کے مائنڈز پہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوں، ہیں۔ لیکن یہ انشائیہ نگار جو ہے، یہ دوسروں کا مائنڈ اپنے مائنڈ پہ پروجیکٹ کرتا ہے اور خود کلامی سے کام لیتا ہے۔ واہ، تو اس طرح سے اس کے یہاں وہ رنگا رنگی بھی آتی ہے، اور یہ ایک آدمی کی سوچ نہیں، 20 لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اس کے قلم سے یہ ہے۔ تو واہ، اس طرح سے اس میں رنگا رنگی جو ہے وہ لوگوں کو متاثر بھی کرتی ہے اور خود شگفتہ رکھتی ہے آدمی کو۔ کیا بات، وہ واہ، کسی ایک چیز پہ بس نہیں کرتا، کوئی ایک غم اس کو کھا نہیں جاتا، بلکہ 20 لوگ اس غم میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ واہ، واہ۔ علی گڑھ سے زبیر شاداب بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی اس نے میرا فون نہیں اٹھایا زبیر شاداب نے کچھ دن پہلے۔ ان کو ڈائریکٹری مبارک کو، میں نے ابھی غضنفر آئے تھے یہاں، گھر میں شافی بھی آئے تھے، ہاں، بتایا انہوں نے کہ زبیر ڈائریکٹر ہو گئے۔ ماشاء اللہ، ڈائریکٹرشپ مجھے بھی خبر مل گئی ہے، ہمارا بھی فون نہیں اٹھاتے ہیں۔ جی، زبیر بھائی کو بہت بہت مبارک۔
تابش بھائی دیکھ رہے ہیں، گیا سے کہہ رہے ہیں آزودہ صاحب کے تحقیقی کام بے حد وقی اور قابل قدر ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ۔ حضرت کوثر مظہری دہلی سے دیکھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، پروفیسر زما آزودہ کی خدمت میں سلام اور عقیدت۔ اور کوثر بھائی آج کل ان کی طبیعت کچھ علیل ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت تندرستی دے۔ اور مشتاق احمد نوری قبلہ پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کو، اس حقیر کا سلام، ماشاءاللہ بہت دلچسپ انٹرویو، بہت بہت شکریہ۔ اور نوری بھائی کا کسی انٹرویو میں آنا بہت بڑی بات ہے، موصوف بہت مصروف رہتے ہیں، مگر آپ کے مبارک قدم کے مشتاق احمد نوری بھی آئے ہوئے ہیں۔ ایک مقاصد مظہری بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک فعال عالم کا نام ہے پروفیسر زما آزردہ۔ بالکل قبلہ، بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو دوستوں ضرور بتاتے رہیں کہ آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات آگے بڑھاتے ہیں اسی طرح۔ شیریں کے خطوط جو ہے آپ کی معروف اور مقبول کتاب ہے، اس کے 2 ایڈیشن یا 3 ایڈیشن بھی آ چکے ہیں۔ کچھ اس دختران خوشگل شیریں کے بارے میں بتائیں۔ یہ شیری کے خطوط جو ہے، اول تو میں پہلے اس کے انتصاب کی بات کروں گا۔ اس کا انتصاب بڑا دلچسپ تھا، ہم، کیونکہ مجھے اکثر اس پہ بات کرنا پڑی۔ میں نے اس میں انتصاب کیا کیا تھا، ان خوبصورت لڑکیوں کے نام جو خطوط میں بھی اپنے خطوط ظاہر نہیں کرتی۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ پھر مجھے بڑی ایکسپلینیشن دینا پڑی، یہ خطوط کیا ہے؟ پھر میں بتاتا تھا کہ یہ خطوط کے معنی فیچرز ہیں۔ اور اچھا، میں نے دیکھا تھا کہ خواتین کے ساتھ یعنی اتنا انصاف نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا یعنی چاہیے۔ ہونا چاہیے تھا۔ اور میں نے، ہماری یہاں پنڈت کمیونٹی تھی، پنڈت کمیونٹی میں بھی یہ تھا کہ چونکہ وہ جہیز وہیز ان کی یہاں بڑی رسم تھی اس کی، لڑکوں کو بڑی اہمیت وہ دیتے تھے، اور لڑکیوں سے کہتے ہیں آپ کے لیے تو جمع کر رہے ہیں، آپ کے لیے تو جمع کر رہے ہیں۔ تو کتنی چیزوں سے اس کو محروم رکھتے تھے ابتدائی زمانے میں۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں بھی یعنی مسلمس میں بھی، شرفا میں بھی وہ دبی دبی رہتی تھی۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ 1975 میں یہ کتاب چھپی، اٹ واز سیلیبریٹڈ ایز انٹرنیشنل ایئر فار ویمن فار دا فرسٹ ٹائم۔ تو میری یہ کتاب چھپی شیری کے خطوط، اس میں میں نے 2 کریکٹرز پیش کیے: شیری جو کنزرویٹو ہے، پرانے اس کی ہے، اور زرینہ جو نئے ماڈرن۔ اس کی۔ گیان چند جین نے اس کی بڑی تعریف کی تھی، اور میں یہ خاص بات آپ سے یہ عرض کروں گا کہ چھوٹا تھا میں نے گیان چند جین کو یہ اس کا مسودہ بھیجا کہ یہ میں چھاپ رہا ہوں، اس کا فارورڈ لکھیے، اور اس میں نے وہ پوسٹل سٹیمپس بھی رکھ دیے لفافے میں۔ خیر، جین صاحب نے سٹیمپس واپس کر دیے، اور یہ لکھا کہ یہ آپ نے کیا، میں ڈپارٹمنٹ کے خرچ سے بھیجتا، بہرحال فارورڈ لکھا۔ اور جب یہ کتاب چھپی، ان کے پاس بھی کتاب گئی، میں گیا اس زمانے میں جہاں آج کل جموں یونیورسٹی ہے وہاں نہیں تھا وہ ڈپارٹمنٹ، کنل روڈ پہ تھا۔ تو میں گیا، نیچے ہم بیٹھے ہیں، شام لال کالرا، عابد پشاوری، منظر اعظمی، اور ظہور بھی ہو گئے تھے، ظہور، ہم بیٹھے ہیں، ظہور الدین صاحب۔ تو جین صاحب کو پرچہ بھیج دیا گیا کہ ہم آ گئے ہیں۔ تو وہ آ گیا وہاں سے کوئی بلانے کے لیے، وہ اوپر بیٹھتے تھے فرسٹ فلور پہ، ہم گراؤنڈ فلور پہ تھے۔ میں جب گیا تو یہ مجھے یاد ہے کہ اب آپ دیکھیے، میں جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، میں نے آداب کیا، انہوں نے آداب کیا، مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹھ۔ میں جا کر کے اب بیٹھتا کیا، وہ کھڑے تھے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جین صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ نہیں، یہ آزردہ آنے والے تھے۔ میں نے کہا میں تو آ گیا۔ کہا ارے ارے، میں نے سوچا تھا یہ 50-55 کا کوئی آدمی ہوگا اچھا جس اچھا۔ نے اس طرح سے اس کتاب کو ریو کیا ہوگا۔ اور زرینہ کی تعریف اس نے کتنی کی، یعنی چونکہ عورتوں میں ایک نئی آواز جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی زرینہ کے ذریعے، اور ایک وہ طرح کا وہ ٹکراؤ بھی نہیں تھا، بلکہ مصالحانہ اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے بالکل یعنی ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے لگے سمجھ تھے۔ میں، واہ۔ اور اس لیے اس کتاب کو بہت پسند کیا گیا اس زمانے میں۔ تو بہرحال وہ ہمارے بچپن کے کھیل تھے۔ اچھا۔ 75۔ کولکتہ سے ہماری چھوٹی ہمشیر نگار شاہد دیکھ رہی ہیں، آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ بہت عمدہ گفتگو ہو رہی۔ آداب کے۔ زبیر شاداب بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر، کیمپس میں صورتحال کچھ ٹھیک نہیں، وہاں کی مصروفیت بڑھ گئی ہے، مگر آج بہرحال شریک ہونا تھا لہٰذا آگے ہیں، اور بہت بہت شکریہ زبیر بھائی۔ شکریہ ادا اور کیجیے ہماری طرف سے۔ ڈاکٹر صابر رضا رہبر بھائی بھی آپ کو تسلیم کہہ رہے ہیں، بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے۔ صابر بھائی ہمارے جرنلسٹ ہیں انقلاب کے، اور پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ حمیرہ رحمان صاحبہ دیکھ رہی ہیں نیو یارک سے۔
और जी हुमैरा रहमान आपको सलाम कह रही। जी और जी। तो तर्जुमे की तरह अदब अतफाल की भी कमी है उर्दू में। और अब ये काम एनसीपीएल भी संजीदगी से कर रहा है। आपने बड़ी अरकरेजी से की है इस फील्ड में। कुछ बताएं कि क्यों बच्चों के लिए लिखना ऐन इबादत है। देखिए, एक बात है कि असल में आदत पड़ जानी चाहिए पढ़ने की। और अगर बच्चे को हम मिर्जा पढ़ने को दे दें तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो। हाँ जी। हम अपने अफसाने पढ़ने के लिए दे दें, हमारे अपने चाहिए। बच्चों को उनकी चीज चाहिए, उनकी जबान में चाहिए। और बच्चों को ने जब भी कोई चीज आप उनको पढ़ने दें तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनको अपने साथ ले जा रहे हैं, अपने साथ चला रहे हैं। वाह। और वो आपके साथ नज़म भी, आपके साथ वो नज़म भी गाना शुरू करेंगे और बहुत ये लहक लहक के उसको पढ़ेंगे। और कहानी भी, बल्कि पहले तो नानी दादी कहानियां सुनाती थी सुनाती और थी। बच्चे उसी तरह से तो हमने ये ज़ौक जो हम में पैदा हुआ है। तो हमें भी बच्चों की नानी दादी बन के उनको कहानियां या सुना रही। दूसरी चीजें जो उनकी दिलचस्पी की है। मगर उर्दू में ऐसा कम हुआ। देखिए, उर्दू में दो चीजें हो गई जिससे न सिर्फ जबान को बल्कि पूरी कौम को नुकसान। एक ये कि बहुत ही अदब से, यानी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनसे माजरत के साथ, कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनसे माजरत के साथ ये कहता हूं कि वो जो कुछ लिखते थे उसकी पजीराई होती थी। अगर यूनिवर्सिटी से बाहर रह के कोई लिखता था, अरे उसकी कोई अहमियत ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है। एक जमाने में हमने, अच्छा ये तो वैसे ओवरऑल आलमी अदब में भी हुआ है, एक जमाने तक ये फिक्शन जो है कि क्लासिकल लिटरेचर में शामिल नहीं था, उसके बाद शामिल हो गया ये। या इसी तरह से फिर हमारे लोगों ने क्रिटिसिज्म को भी, हालांकि मैं कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म के बारे में मैंने एक बार कहा है, कहीं इंटरव्यू दे रहा था, ने कहा कि आप बताइए इस तनकीद निगार के बारे में, तनकीद के बारे में। मैंने कहा देखिए, पहला आदमी वो है जो क्रिएटिव राइटर है, दूसरा उसका रीडर है। ये क्रिटिक जो है ये तीसरा आदमी है। तो हम्म। इसका काम था कि ये लिखने वाले की रहनुमाई करता कि देखिए यूं होता तो अच्छा होता, यहाँ ये हो सकता था, ये हो सकता था। और पढ़ने वाले से ये कहना था इसको, इस चीज इसमें ये चीज है, इसको ऐसे भी पढ़िए, इस करेक्टर को यूं भी देखिए, इस डायलॉग को यूं भी देखिए। लेकिन उसने दोनों को गुमराह कर दिया, लिखने वाह। वाले को भी और पढ़ने वाले को भी, बहरहाल। तो और इसी तरह से आप देखिए फिल्मी दुनिया में जो लोग आए हैं उनको, उनकी पजीराई यानी उनकी राइटिंग्स की पजीराई इस तरह से हमारे हलकों में नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि हमारी आपकी उम्र जो है, आप मुझसे छोटे हैं, कि हम लोगों ने जितना इब्न सफी से सीखा है, बिल्कुल। आप मुझे बताइए इतना किसी संजीदा किताब से हमने सीखा है। और उनको भी हमने एक जमाने तक कि इसमें शुमार ही नहीं किया। हमारे दोस्त मुजावर सर, उनको छिपाना पड़ा। सेट पे, टेलीविजन के सेट पे मैंने उनसे कबूल करवाया कि मैंने 1050 किताबें लिखी हैं। वरना वो सब कुछ जो उन्होंने इस तरह से लिखा था उसको वो ने बिल्कुल ओन ही नहीं करते थे। सिर्फ एक वो क्या तरक्की पसंद तहरीक में लिखा था और भी कुछ लिखा था उसका जिक्र करते थे। लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। लोग बिल्कुल। देखिए कि नीचे छिपा करके, मैं कहता हूं एक बार बताइए मुझे, जितनी जाहिर इश्क पढ़ी गई, क्या कोई और मसनवी इतनी पढ़ी गई? इसी तरह से जितना जासूसी अदब, वो जो मैं इब्न सफी को कोट करूंगा, यानी इलाहाबाद को उसने मरकज बनाया उर्दू का। और वहां से मैं समझता हूँ कि लखनऊ से ज्यादा, दिल्ली से ज्यादा उर्दू जो फैली वो इलाहाबाद से फैली, इन नॉवलों के। नॉवेल से। बिल्कुल। तो अच्छा मुझे लगता है कि ये ज्यादती हुई। और इसी तरह से बच्चों के अदब को, अरे बच्चों के लिए कुछ लिखता है, ये कोई बात हुई? मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए लिखने के लिए ज्यादा मुअम्मर होना जरूरी है, ज्यादा तजुर्बेकार होना जरूरी है, और नजर पैदा करना जरूरी है। वाह वाह। तो मुझे लगता है कि अब इसकी और ज्यादा जरूरत है। और एक खास बात यह कि ये जो हम सोचते हैं कि हम बाहर की किताबों को बच्चों के लिए तर्जमा करके अपने बच्चों को देते हैं, उसमें हमारा कल्चर ही नहीं आता, हमारा मिजाज ही नहीं आता, वो इतनी मदद नहीं कर पाता। नहीं। आप छोड़िए शादी की हिकायत को, छोड़िए उनको, ये भी तो यानी ये मतलब क्लासिकल लिटरेचर है ये भी। लेकिन आम तौर पे हमें बच्चों के लिए बच्चा बन के उनको यहाँ का। साथ आके लिखना है।
बिल्कुल बिल्कुल। तर्जमे का जहां तक ताल्लुक है, मैंने ज्यादा तो नहीं किया, मैंने 15-20 किताबें मैंने ट्रांसलेट की होंगी। यानी मैंने देखा कि कश्मीरी में बाज कमियां हैं, तो उन चीजों को मैंने उर्दू से, अंग्रेजी से कश्मीरी में ट्रांसलेट किया। और मेरे कुछ दोस्त हैं उड़िया फ्रेंड्स, यानी मैंने मनोज दास को ट्रांसलेट किया है, मैंने ये सीताकांत महापात्र को ट्रांसलेट किया है, और भी कुछ लोगों को उड़िया से। फिर कन्नड़ अफसाने हमने एक वर्कशॉप उस पर कराई। इसी तरह से कितने वर्कशॉप्स हमने डिफरेंट डिफरेंट कराए। और मैं साहित्य अकेडमी की दाद देता हूँ। साहित्य अकेडमी ने, इट वाज 86, नरसिम्हा राव उस जमाने में एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसने इनॉग्रेट किया था उस वर्कशॉप को। 6 हफ्ते की वर्कशॉप हमने 24 लैंग्वेज की दिल्ली में की। वाह। 6 हफ्ते लोग रहे, और फिर रोज 2-4 एक्सपर्ट आते थे, रोज चले जाते थे। उसमें कितने एक्सपर्ट से लोगों की मुलाकात हुई, आपस में कितना वो जबानों का ये जो, यानी इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन। जबानों का आपस में मेलजोल जो है, ये इससे कितना फायदा हुआ हम सब जबानों को, इंडिया की जबानों को। और उसके बाद फिर दूसरी जो बड़ी वर्कशॉप हुई है 4 वीक्स की, वो मैंने कश्मीर में की है 10 लैंग्वेजेस की। तो वाह। वो आर एन श्रीवास्तव थे, वो डायरेक्टर थे लिंग्विस्टिक्स के इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने उसका ऐसा ट्रेनर कोई नहीं देखा है, क्या आदमी था। तो गरज उससे लोगों को अंदाजा हुआ कि ट्रांसलेशन जो है, अदबी ट्रांसलेशन, ये कितना इंपॉर्टेंट। देखिए, इल्मी तर्जमे तो होते ही थे, न्यूज बुलेटिन तो रोज ही ट्रांसलेट होता था, जैसे रेडियो में, बाद में अब टेलीविजन भी आ गया था। अच्छा, अखबारों में ट्रांसलेशन होते थे, क्योंकि वो प्रेस नोट जो है, प्रेस रिलीज जो है, वो अंग्रेजी में आता था, वो उर्दू वाले उसको उर्दू में डालते थे, हिंदी वाले हिंदी में डालते थे, और इस तरह से दूसरी जो लोकल लैंग्वेज होती थी उनमें। लेकिन इल्मी किताबें, उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मगर अदबी किताबों के ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत थी। बहुत। उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी कि हर लैंग्वेज जो है उसके पीछे कल्चर होता है। और अमूमन क्या होता है, देखिए, एक तो सोर्स लैंग्वेज होती है, एक टारगेट लैंग्वेज होती है। लेकिन अक्सर लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करते वक्त हमें फिल्टर लैंग्वेज से भी काम लेना पड़ता है। जितना रूसी अदब यहाँ ट्रांसलेट हुआ है वो अंग्रेजी के थ्रू हुआ है, फ्रेंच लिटरेचर हमारे यहाँ अंग्रेजी के थ्रू हुआ है, तो इसमें 3 कल्चर इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से नहीं, इस पे लॉसेस भी होते हैं, बल्कि आपको अच्छा लगेगा, एक जमाने में मैंने लिखा था, तो खैर एक और तरह से भी लिखा था, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी दूसरी तरह से जो मैंने कहा था वो लिखा था, कि ओरिजिनल राइटर जो है, क्रिएटिव राइटर, ये फीचर फिल्म राइटर है, फीचर फिल्म मेकर है। इसको लोकेशन न मिले तो सब्स्टिट्यूट करे, कैरेक्टर न मिले तो सब्स्टिट्यूट करेगा। इसका अगर करेक्टर कोई डायलॉग नहीं बोल पाता, या तो करेक्टर को सब्स्टिट्यूट करेगा या डायलॉग को सब्स्टिट्यूट करेगा। इस तरह से उसके पास कितने सब्स्टिट्यूशन का ये है। अगर लेंथ ज्यादा हो जाए तो कुछ सीन्स ड्रॉप करेगा, कम पड़ेगा तो कुछ एडिशनल सीन्स लिखवा देगा। लेकिन ये ट्रांसलेटर जो है, इज लाइक अ डॉक्यूमेंट्री मेकर। उसका एक ही गॉड है। अगर उसको जैसे स्नेक का कोई पर्टिकुलर पोज लेता है, कि माइट हैव टू वेट फॉर 10 years, अगर वो स्टॉक से शॉट नहीं लेता, तो उसे बहरहाल वेट करना पड़ेगा कि बिल्कुल। हजरत साहब जो है वो किस तरह से उस करवट कम लेटेगा तो ये फोटो लेगा। तो ट्रांसलेशन का काम थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ज्यादती ये भी हुई है, आपको पता नहीं, आप इस वक्त आपके जहन में है, ट्रांसलेटर का नाम मेन टाइटल पे लिखा ही नहीं जाता था। हम्म। ये बड़ा अफसोस है अब भी। मेरा जो है अंग्रेजी में टी एन कॉल ने मेरी किताब जब ट्रांसलेट की, मेन टाइटल पे उसका नाम नहीं छपा। मैं अब तक खुद को बख्श नहीं पाया। लेकिन उसी किताब को दूसरे ने जब ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में ही, तो उसका नाम टाइटल पे आया है, तारिका प्रभाकर का। तो असल में ट्रांसलेशन जो है, ये बहुत अहम है। बल्कि ये जो मैं वचनास के साथ जुड़ गया, तो उसकी भी वजह ये ट्रांसलेशन हो गया। अच्छा साहब, कौसर मजहरी भाई बड़े मज़े की बात बता रहे हैं कि हैदराबाद के एक प्रोग्राम में इख्तिताम पर अपनी सदरी की जेब से कुछ निकाला और खाने लगे हजरत। मैंने इनकी तरफ देखा, मुझे भी इनायत फरमाया। बादाम और पिस्ता इनकी एनर्जी का एक राज ये भी है। अल्लाह इन्हें हमेशा अपनी अमान में रखे। तो ये बता ये रहे हैं कि मेरा जो सवाल था कि एनर्जी कहाँ से आती है, तो बादाम और पिस्ता आप लिए घूमते हैं साथ। शबनम आशाई भी देख रही हैं, मेरे ख्याल में श्रीनगर से, और सलाम कह रही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सही बात। गुफ्तगू चल रही है जी। और हम्म, कसीम ताबिश देख रहे हैं लखनऊ से, हमारे एक शायर दोस्त हैं, कह रहे हैं दिलचस्प और उम्दा गुफ्तगू चल रही है। अमीर
अंजुम भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। अंजुम भाई, अमीर साहब ने बताया नहीं कि कहाँ से देख रहे हैं। तारिक सैयद भी आपको सलाम कह रहे हैं गुफ्तगू की। तारिक सही। और डॉक्टर हारून रशीद भाई हमारे लखनऊ से देख रहे हैं। जी और जी। बहुत उम्दा शानदार गुफ्तगू। तो टिबला, आप सुथरे शेर भी कहते हैं, ये कम लोगों को पता है। जो पुराने लोग हैं मेरी तरह के, उनको मालूम है कि मुशायरे आप पहले पढ़ते थे। कोई गज़लों का मजमुआ मेरी नज़र में नहीं है, इसकी क्या वजह? नहीं, असल में मैंने शायरी को, ये तो जाहिर है कि हम, वो दौर था। और फिर ये भी है कि मुशायरे में पैसे वैसे मिलते थे, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म। बल्कि मैं खुद मुशायरे करवाता था वो फील्ड पब्लिसिटी से। और क्या, हमारे यहाँ बड़े अच्छे शायर थे, रहमान राही, ज्ञानपीठ अवार्डी, अल्लाह मगफिरत करे। मुझसे कहते थे, मुशायरा कब करा रहे हो? और मिलता कितना था? 20 रुपए, वो भी ओ, दिल्ली से, फिर मनी ऑर्डर से आते थे। ओ, 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 तो इसलिए मेरा कोई कलेक्शन, अब कोई छापेगा मेरे बाद तो देखेंगे, वो खंगालेंगे। अच्छा तो अच्छा। लेकिन एक बात, उसमें भी मैं इतना डिसऑर्गेनाइज था, जब भी मैं मुशायरे में जाता था मुझे उसी दिन कुछ कहना पड़ता था। वजह यह कि मुझे पुराना मिलता ही नहीं था, कहीं पता नहीं किस फाइल में कहाँ चला। अलबत्ता एक बात है कि वो इसके, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि इसको छोड़ के, कि हमारे यहाँ इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर हमें कम नजर आती है, लेकिन हमने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। मिसाल के तौर पे, यहाँ भी इस तरह के लोग थे। 12वीं सदी में बसवेश्वरा थे कर्नाटका में, फिनांस मिनिस्टर थे और हुकूमत उनके पास थी। लेकिन अव्वल तो उनका ब्राह्मण थे। अव्वल तो उनका तजाद इस पे हुआ कि जब उनको दागा पहनाने लगे, तो उसने कहा मेरी बहन को क्यों नहीं? असल में औरतों को पहना ही नहीं जाता था। तो उससे वो थोड़ा इख्तलाफ बढ़ता गया। फिर जब उसने देखा कि लोगों के काम नहीं होते, लोग परेशान हैं, उसने गद्दी छोड़ दी, वजारत छोड़ दी, लोगों में मिल, वाह। और ऐसे कुछ फकीर फकीर टाइप लोगों को जमा किया जिन्होंने वचन कहे। अच्छा, वो वचन भी, उसमें एक बात है कि ये एक दिलचस्प बात है कि जब एरियंस आए तो उन्होंने कश्मीर की जो नेटिव ने जो कम्युनिटीज थी उनको नीचे की तरफ धकेल दिया, मैदान की तरफ। और उसमें कोई, तमिलनाडु में भी आपको कश्मीरी मिलेंगे, कर्नाटका में भी मिलेंगे, और हमारे यहाँ एक फॉर्म है वात्सुन। वात्सुन, इन सारे इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि स साउंड हर एक लैंग्वेज में नहीं है। एनीवे, तो शायद उसी से वचन हो गया, या क्या इसका उससे रिलेशन है कि नहीं, उसको अलग करके वचन जो कहे गए उस वक्त, जैसे खवातीन में अक्का महादेवी और कुछ और लोग थे, ये बसवेश्वरा और इस तरह से कितने लोग थे, वो 800 साल तक ये खजाना जो था छुपा रहा। छुपा के रखा गया। अच्छा, इसमें मैं ये, आपने भी बताया, मैं ये अर्ज करूंगा क्योंकि लखनऊ वाले छुपना कहते हैं, दिल्ली वाले छुपना, इस वजह से मेरी जबान पे ये छिपना और छिपा आता है। अच्छा, 800 साल तक। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे, इमाम कलबुर्गी। मैं जब मैसूर में था तो उस जमाने में उनसे मुलाकात भी हुई थी। खैर, उन्होंने एक वॉल्यूम 2500 वचनांश का तैयार किया, और फिर ये सोचा कि ये वचनांश जो है ये सारी इंडियन लैंग्वेज में है। और एक मेरे दोस्त थे, अग्रहारा कृष्णमूर्ति, उन्होंने मुझे कश्मीरी के लिए, जब वो हिंदी वाले आमंत्रित कहते हैं, मैं कहूँगा मधु किया, तो मैं कलबुर्गी के साथ बैठा तो मैंने कश्मीरी का, उसका मैं चीफ एडिटर था, वो ट्रांसलेटर भी। फिर दूसरे लोग मेरे साथ काम करते थे। फिर मैंने डोगरी को भी, उसका भी चीफ एडिटर रहा। अच्छा, फिर मैंने इनको एक सजेशन दी कि अगर हमारे पास ये खूबसूरत चीज़ है, फायदेमंद चीज़ है, इसको तुम हिंदुस्तान तक क्यों महदूद रख रहे हो? उसको हिंदुस्तान से पूरी बाहर भी दुनिया में। निकाल। चनाचे हमने दूसरी लैंग्वेज में किया। मैंने अरविंद जट्टी को इस पे कायल, इसका कायल कर दिया कि पहले हमने अरबी में उसका ट्रांसलेशन कराया, राकजा जैदी वगैरह से, गुलाम जी आर जान वगैरह से, फारसी में, और दूसरे लोगों से, जैसे वो हमारे शाद साहब थे, उन्होंने अरबी में की। उसके बाद बात बढ़ती गई, फिर मैंने चाइनीज में, इसमें क्या नाम है इसका, ये फ्रेंच में हमारे दोस्त प्रोफेसर डीके सिंह ने, नेपाली में संजीव वगैरह, नेपाली छप गया, फ्रेंच छप गया, चाइनीज छप रहा है। और फिर अभी वो उल्फत जी कर रही है वहाँ, उनकी निगरानी में हो रहा है, उज़्बेक में, ताशकंद में। और फिर और लैंग्वेजेस, इधर बोडो खासी वगैरह, ये भी हम ले रहे हैं। तो ये, इसमें मैंने देखा कि इंसानियत का खजाना है। किसी
मजहब से कोई टकराव नहीं है। उनकी टर्मिनोलॉजी को छोड़िए, कहीं उनके वो उनकी नज़र में वो देवताओं के नाम वगैरह असल में वो भी इन वे टर्म्स हैं जिनसे हम अक्स कर सकते हैं मफाहिम। तो उसको हमने दूसरी लैंग्वेज में, जैसे खवातीन को किस नज़र से देखा जाए, पराई औरत को किस नज़र से देखा जाए, मेहनत करके खाया जाए तो उसकी क्या है, बच्चों के साथ कैसा सलूक हो, इस तरह की बेशुमार चीजें। बल्कि वो पार्लियामेंट जो 770 लोगों की थी, मेरे ख्याल में उस वक्त तक यूरोप में पार्लियामेंट नहीं थी, जब तक बसवेश्वरा ने उस पार्लियामेंट को तब्दील किया। मतलब इसी तरह से कितनी चीजें, संस्कृत लिटरेचर जो हमारे यहाँ है, कश्मीर में जो लिखा गया, अगर उसको, या बड़शाह ने, बादशाह जैनुल आबदीन ने जो ट्रांसलेशंस कराए संस्कृत से पर्शियन में, मैं कहता हूँ कि इन चीजों को हमें आम करना चाहिए, बगैर ओहदे के, बगैर इसके कि कौन क्या देता है कौन क्या नहीं देता। देखिए, दौलत दौलत ये सब यही रह जाएगा, लेकिन काम जो है वो आगे तक चलता चला जाएगा। और तो मुझे दोस्तों ये लगता है कि जो बचनास के साथ हमने काम किया ना, मैं बहुत खुश हूँ, और मजा आता है डिफरेंट लैंग्वेज के ट्रांसलेटर के साथ बैठ के, कि वो कैसे हमें हमारी जबान में, चाहे अंग्रेजी के जरिए उर्दू के जरिए, समझाते हैं कि उनकी जबान में इसका क्या बना। हम आवाज सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं। तिबला यही मेरा अगला सवाल यही था। और दोस्तों को बताता चलूं कि आजुर साहब जो बता रहे हैं वो बसावना की वचना में ये जी। पूरी फाइल है और बहुत बड़ा काम है ये। इसका तर्जुमा आजुर साहब ने कश्मीरी में किया और इसकी और सारी तफसील बता रहे थे। तो उर्दू में भी इसका तर्जुमा हुआ है, इसका मतलब है? उर्दू में तर्जुमा हुआ है, माहिर मंसूर ने किया है। अच्छा, माहिर मंसूर। बंगलोर से माहिर मंसूर ने, अभी हमने लास्ट ईयर उसका रिव्यू यहाँ किया। अब वो दोबारा छपेगा, यानी अच्छा। इम्प्रूवमेंट के साथ, क्योंकि हम्म। तर्जमा तो हमेशा इम्प्रूव होता ही रहेगा, हाँ, होता ही तर्जुमा रहेगा। होता रहेगा, जी हाँ। जी हाँ, हाँ। एक ही आदमी अगर बार बार तर्जमा करे उसमें भी इम्प्रूवमेंट जी होता हाँ। है, जी हाँ। और जी, अगर दो लोग करेंगे, तीन लोग करेंगे, उसमें और ज्यादा बहुत गुजारेगा। ज़्यादा ही है, जी हाँ। अच्छा, फैज़ान भाई बहुत एक्टिव हैं आज, क्योंकि छुट्टियां गुजार रहे हैं कश्मीर में। जी सर। वो कह रहे हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सर का मुशायरा भी अटेंड किया और सर की कार ड्राइव का भी मज़ा उठाया। बस पिस्ता खाने को नहीं मिला, इंशाल्लाह अगली बार। जी साहब। तो क्यों? मैं आरिफ हमसे खान कहिए ना, हम साहब। लोग हम खाते हैं। अच्छा अच्छा। आरिफ खान साहब बता रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आज इब्ने सफ़ी का काम नाम सुनकर बड़ी खुशी हुई। मैंने इनको यह पहली मर्तबा 70 में देखा था अपने घर में, बहुत मज़ा आ रहा है। अरे, अच्छा, आरिफ खान साहब मेरे ख्याल में हमारे दोस्त हैं टोरंटो के। ये उनका मैसेज है, बता दें भाई कि कौन से वाले आरिफ ये कमेंट कर रहे हैं। निगार अजीम भाजी भी आ गई हैं। निगार अजीम दिल्ली से कह रही हैं, दो अहम शख्सियात की खिदमत में सलाम पेश है। आजुद्दा साहब मुझे बहुत अजीज़ हैं, इनसे गुफ्तगू, उन्हें सुनना और अपने आप में एक एडवेंचर है। जी बिल्कुल। हमारे दोस्त ख्वाजा नसीम अख्तर कोलकाता से देख रहे हैं जैसे और नसीब। कह रहे हैं आजुद्दा साहब और जावेद भाई को, दोनों मोहतरम को सलाम। बड़ी उम्दा गुफ्तगू सुनने को मिल रही है। आजुद्दा साहब की दबीर और हामदी कश्मीरी पर इनकी मालूमात अफजा किताबों से रूबरू होने का मौका मिला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात। अ, दोस्तों, वक्त हम मेरा ओवर हो चुका, मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। थोड़े से सवालात और हैं। कुछ कुछ वक्त, क्योंकि शुरू में कुछ मिनट बेकार हो गए थे, तो उसको कवर कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे दोस्त भी जमा हो गए। और आजुद्दा साहब का शुक्रिया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे कि ऐसे बड़े बड़े चंदे आफ्ताब चंदे महताब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तुमने साहब, तो वचना के बाद किबला आपकी जंबील मुबारक में एजाज़ात और अवार्ड्स भरी पड़ी है। कौन सा अवार्ड आपके दिल के करीब है और क्यों है? देखिए, एक अवार्ड जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, हालांकि लखनऊ वालों ने इनायत की, वो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, उसमें पैसा भी अच्छा खासा होता है, या वो गालिब अवार्ड फॉर उर्दू रिसर्च एंड क्रिटिसिज्म, या मुख्तलिफ एकेडमीज के अवार्ड, लेकिन एक अवार्ड मुझे बहुत अच्छा, और मैं उसे समझता हूँ कि ये मेरा कारनामा है, और मेरे होने का जवाब है। वो ये कि जब ये ट्रांसलेटर कहते हैं, ये 45 साल पुरानी किताब नहीं है, ये आज की किताब। वाह। तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि क्या 45 साल पहले मैं इस तरह से सोचता था कि मैं आज के आदमी को सोचना चाहिए। मैं वाह। कहता हूँ ये सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये भी कम नहीं है कि मैं जावेद दानिश के साथ
महज गुफ्तगू हो, वो मुझसे बात कर रहे हैं, और जिन लफ्जों में उन्होंने मुझे दूसरों के सामने पेश किया है, जिन लफ्जों के साथ, और जिस क्या क्या कहना चाहिए, मैंने जिस मोहब्बत और शफकत से, जिस इज्जत और एहतराम से, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है। और ये लोग जो सलाम कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि हम दोनों खुशकिस्मत हैं बिल्कुल। कि कोई हमारी बात सुनता है, बिल्कुल। वरना लोगों के पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है। वक्त ने इतना परेशान कर रखा है लोगों को। अब आज का जमाना बाई बाई से नहीं, एक कमरे बिल्कुल। में रहते हुए दो आदमी आपस में नहीं, फोन पे अलग अलग वो लगे रहते हैं, आपस में कोई, इस पर मैंने लिखा है, मैंने ऐसे लिखे हैं मैंने। तो बहरहाल मैं इंजॉय करता हूँ कि ये लोग हमारी बात सुनते हैं या हमसे मुखातिब होते हैं, बड़ी बात बड़ी है। बात है साहब, अल्लाह हम आपको दोनों सलामत रखे। खुशकिस्मत हैं, हम दोनों खुशकिस्मत हैं इस एतबार बिल्कुल। से। आपकी दास्तान गोई से मैं महजूज हो चुका हूँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप 200 साल पुरानी बात, 400 साल पहले का तरीका दूसरों के सामने जब रखते हैं, वो आपको सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, खुश होते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और उनको उनके अपने मसाइल जो है उनमें उनको तसल्ली बख्श जवाब उससे मिलता है। ये बड़ी बात बड़ी बात है साहब, बड़ी बात। मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं आपको, रफ़ीगंज से आपको आदाब कह रहे हैं। और शहाब आज़मी भाई भी आ गए, उम्दा और मालूमात अफजा गुफ्तगू हो रही है। शहाब आज़मी भाई पटना से देख रहे हैं। है। और दोस्तों, सवालात का वक्त ख़त्म, कुछ दो चार सवाल रह गए हैं, उसको ले लेते हैं। किबला ये बताइए कि तमाम बातों में कि क्या क्रिएटिविटी के लिए इश्क ज़रूरी? वो देखिए, एक बात है कि अब इश्क की भी किस्में हैं। यानी कुछ लोग तो अपने काम से इतना इश्क रखते हैं कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। आपको याद होगा इमानुअल कांट जब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिख रहे थे, एक लड़की से उनका मामला चल रहा था, उसने कहा भी शादी वादी के लिए, लेकिन ये मसरूफ रहा। और जब इसने ये खत्म की, जब उस लड़की से कहा, उसने किसी से शादी कर ली थी, उस बीच में 4 साल लग गए थे। और फिर ये एक एक से कहता था कि देखो मैंने क्या लिखा है, ये देखो मैंने क्या लिखा है। तो गरज जिसको हम इश्क कहते हैं, असल में हम ये हर आदमी के का अपना मफहूम है इश्क के लिए। और एक जनरल बात जो है जिसको हम इसमें लेते हैं, वो देखिए, उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ, वो मफाहिम उसके चेंज होते हैं। तो वाह इसलिए इश्क बहुत जरूरी है, इश्क बहुत जरूरी है। वाह वाह लेकिन वाह। वक्त के साथ साथ उसका मफहूम ही बदलता रहता है। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया सुकून के लिए कश्मीर जन्नत नजीर जाती है। आप सुकून के लिए क्या करते हैं किबला, पुरसुकून है आप? एक एक बात मैं आपसे कहता हूँ, कहीं मैंने लिखा है कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, और हम लोग जन्नत में रहते हैं। और जन्नत हमारे अकीदे के एतबार से मरने के बाद मिलती है। उस एतबार से कभी कभी मुझे शक होता है कि शायद हम सब मरे हुए हैं, अच्छा, अल्लाह। ये तो जन्नत में रखा गया है। अच्छा है। और जाहिर है कि अब बड़ा हुआ आदमी जो है, उसके सुकून ही सुकून, क्या एक बात ही है। करवट में सुकून ही सुकून है। अल्लाह बहुत का अच्छा। फजल है, अल्लाह का फजल है हम बहुत पे। अच्छा। मौला ने करम किया है कि हम यहाँ रहते हैं, कश्मीर और में। पहाड़ पे रहते हैं। इसका एक नुकसान भी है। आप सोचते होंगे मैं सफर इतने क्यों करता हूँ, अभी मैं केरला गया था, मैं साउथ क्यों जाता हूँ। जो पहाड़ पे रहता है वो ऊंचाई पे होता है, वो जब मैदान की तरफ देखता है तो उसको सब बौने नजर आते हैं। अच्छा। इसीलिए मैं सफर करता हूँ ताकि मुझे अपने सही कद का अंदाजा हो। वाह इसीलिए वाह मैं लखनऊ जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, साउथ की तरफ जाता हूँ। वाह तो वाह ये वाह। भी एक डिसएडवांटेज है जन्नत पे होने का। स्ट्रेस का सक्सेस जो है, कामयाबी आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? देखिए, एक बात है कि हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। अलबत्ता हम कंपैरिजन करते हैं, वो गलत बात है। प्लेटो रोज रोज पैदा नहीं हुई, लेकिन हर आदमी में एक तरह का टैलेंट होता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो आदमी जो है, जब हम किसी को देखें, वो अपना वक्त इस्तेमाल कर रहा है या उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। और जब कोई आदमी अपना टाइम यूटिलाइज करे, चाहे वो गुफ्तगू ही क्यों ना हो, कुछ लोग खाली बैठना एंजॉय करते हैं, कुछ लोग बस सोचना एंजॉय करते हैं, जो जिसके पास है
اگر وہ اس کا استعمال کر رہا ہے وہ مطمئن ہے، وہ واہ اطمینان ہے، البتہ کبھی کا کس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ میں نوز باللہ، اگر اللہ بھی ایسے کہے کہ آپ کو کیا مسرت ہے، آپ کو کیا اطمینان ہے کہ آپ نے جو کچھ بنایا، شاید وہ بھی کہے گا یہ باقی رہ گیا، وہ باقی رہ گیا، اور چیزیں کہ انسان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جون ایلیا کہہ گئے اتنی اجلت میں یہی ممکن تھا۔ یہی وہ کیا بات ہے اس آدمی کی، کیا کتنا پسند کیا جاتا ہے۔ اب بھی لوگ ماڈرن جو ہیں اور پرانے لوگ جو ہیں دونوں اس کی کتاب ہاتھ میں لیے رہے۔ واہ، بالکل اللہ بالکل۔ اللہ۔ زندگی سے کوئی گلا، اینی ریگریٹس؟ نہیں، ایسا تو کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں انسان بنایا تھا تو وہیں سے کچھ ایسا کیوں نہ دیا تھا کہ جس کو، یعنی ہمیں اتنی محنت نہ کرنا پڑتی اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے۔ لیکن گلا تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ابھی تک رکھا ہے مجھے، اور میں اس میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ نے اگر ابھی رکھا ہے تو کوئی کام اس کو لینا ہے۔ واہ تو اس لیے جو بھی کام سامنے آتا میں کہتا ہوں نہیں، یہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اسی لیے شاید مجھے ابھی رکھا گیا ہے۔ آدمی گلا کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ جتنا ہمیں دیا ہے، جتنا ہمیں ملا ہے، میں کہتا ہوں یہ ہماری کوششوں سے نہ ہو پاتا اگر وہ نہ دیتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ آدمی بیکار شکایت کرتا ہے، اس کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو اس کے پاس ہے، جو نہیں ہے اس اس کو میں دیکھ۔ خراب کرتا ہے اپنے زندگی اس کے لیے۔ تو واہ، بالکل بالکل۔ جناب، آج کے پروگرام کا جو سب سے اہم سوال ہے وہ میں نے رکھا ہوا تھا، ہم نے آخری سوال آپ کو سنا رہا ہوں، سوال نہیں ہے، دعوت نامہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر آصف موریشس سے فرما رہے ہیں کہ جاوید بھائی اور عزردہ صاحب، آپ دونوں دوبارہ موریشس آنے کا پروگرام رکھیں، آپ کا استقبال ہے۔ یہ بہت اب دیکھیے، بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے طفیل مجھے بھی ٹکٹ ملے گا، ارے اور میں بھی کیا جاؤں سمجھ گا۔ اس پروگرام کے تو پھر تو اس اب یہ نہیں پتا کہ زیب داستان ہے یا واقعی آصف بھائی بلا رہے ہیں۔ تو نہیں اگر نہیں، بلا رہے واقعی ہیں تو بلا رہے ہیں، اللہ ان واقعی کو بلا رہے ہیں سلامت رکھے، مجھے۔ اور ہم بھی آپ کے ساتھ ماریشس سے ساتھ مجھے چلیں گے ماریشس سے ایک موریشس۔ واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک صاحب یہاں ملے کچھ برس پہلے، کہا آپ ماریشس میں تھے، میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا، آپ گاڑی میں جا رہے تھے تو، لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تم بیوقوف ہو، تمہیں پتھر اٹھا کے گاڑی پہ پھینک رہا تھا، ہم خود ہی نکلتے ہی کس نے پتھر، آپ کہتے میں ہوں۔ تو یہ کر رہا تھا۔ تو بہرحال موریشس بہت اچھی جگہ ہے، موریشس کا موریشس پانی میں مجھے بھی گیا پسند ہے، ہوں، جی ہاں، بہت اچھی جگہ موریشس ہے۔ کا پانی اور لداخ کا آسمان، واہ 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 یہ دو چیزیں جو ہیں۔ لداخ کا اسکائی تو ایسا ہے آدمی سوچتا ہے ہاتھ بڑھاؤں تو تاروں کو چھو لوں، واہ واہ۔ اور موریشس کا پانی ایسا لگتا ہے جو نیچرلسٹ ہو وہ کہے گا بہت ہو گیا، دیکھا اس کا ڈوبنے کو جی چاہے گا۔ ہائے ہائے، واہ، بہت اچھا۔ تو میرے خیال میں ہمارے آصف بھائی اس دعوت نامے کو یاد رکھیں گے، کیونکہ مجھے تو وہ بولتے رہے ہیں کہ بلائیں گے بلائیں گے، مگر عزردہ صاحب کو آپ نے کہا ہے تو ان کے طفیل میں بھی آ رہا نہیں، ہوں۔ ہمارے کئی دوست وہاں ہیں، انہی سے بتا دیں، یہ تو کوئی نہ کوئی تو بلائے گا ہی۔ دیکھیے صاحب، یہ آپ کا نہیں مسئلہ بھی حل کر دیا آصف صاحب۔ قبلہ عزردہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ دوست وہاں ہیں جو کہ ہم دونوں کے ٹکٹ کا میں اپنے آپ کو نہیں چھوڑ رہا، بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم دونوں کے ٹکٹ کا انتظام ہوگا، تو انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے۔ اور واقعی موریشس بڑی پیاری جگہ تھی۔ چلتے بڑی پیاری چلتے صالح رشید صاحبہ کا بھی سلام آ گیا آپ کو، الہ آباد یونیورسٹی، آپ کہہ رہی ہیں کہ شاندار گفتگو۔ اور بھائیوں، اب دوستوں، اب وقت ہو چکا، مجھے اوور ٹائم ہم نے کر لیا، تو مکرمی و معظمی قبلہ مرزا محمد خان صاحب، عزردہ صاحب خان نہیں، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ۔ آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، بلکہ سخن سازی اور کشمیری ادب کی مفید جانکاری بھی سے بھی نوازا، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستوں، آپ سب کا بھی فرداً فرداً شکریہ۔ ہر شنبہ، سیٹرڈیز، میری صبح اور آپ کی شام، آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ احباب اور اردو کے تازہ دم شہ سواروں کو آوارگی پہ راغب کیا کریں، اور ساتھ ہی یوٹیوب چینل ہماری جو ہے آوارگی ود دانش کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتایا کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بڑے ثواب کا کام ہے کہ دل سے دل کو راہ، اور چراغ سے چراغ تا دیر روشن رہا کرتا ہے۔
اگلے ہفتے اچھا، اس سے پہلے میں ایک یہ وضاحت یہ بھی کر دوں کہ پچھلے ہفتے ہماری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ بے پناہ بے شمار دوستوں نے تعزیتی فون بھی کیے اور کمنٹس بھی بھیجے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اسی وجہ سے حضرت صاحب کا پروگرام اس ہفتے چینج مجھے کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ کل ہمارے دوست پروفیسر شیخ محمد اعجاز شیخ جو ہیں، اعجاز کی اعجاز والدہ، شیخ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ہماری ایک بھابھی بھی اسے پہ اس پروگرام کی نظر کیا کیا ہو گیا. جی، تو ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں دوستوں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرماوے، تو آمین۔ تو اگلے ہفتے ہمارے مایہ ناز مہمان ہوں گے ڈاکٹر سنیل شرما، پوئٹ ہیں، ناولسٹ ہیں، اور بائی لنگول میگزین ایک بہت ہی اچھی ہے یہاں ٹورانٹو میں، سیتو، اس کے وہ انگلش کے ایڈیٹر ہیں، ایک اس کا ہندی ایڈیشن بھی نکلتا ہے امریکہ سے، اور اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہندی اور انگلش والے لوگ بھی کیا کیا کارنامہ کر رہے ہیں۔ تو اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ شکریہ بہت بہت. کوئی گفتگو مکمل نہیں ہوتی لیکن کیا. جو وقت، جی ہاں سر، آپ کے لیے اوور ٹائم لگا دیا ہم نے۔ ایک منٹ میں ذرا سا اس کو